to learn something that we can apply so that we become better human beings, we become better professionals, we become better businessmen, and we become better family person. इसलिए हम लोग साथ में आए हैं. Let me ask you a very simple question. How many of you really believe that I could always be a better version of myself? Just raise your hands if you say yes. Thank you. We believe, we are trying. हम मानते हैं हम कर सकते हैं. And I need some improvement. I need some positive change so that I become a better version of my own self. ये विचार रखना जरूरी है. ये मान्यता दृढ़ करके इस पे प्रयत्न करना जरूरी है. तो ही हम जीवन में कुछ कर पाएंगे और उससे संतोष जीवन में आएगा. तो बेटर वर्जन बनना है, श्रद्धा रखनी पड़ेगी. आप वही रहेंगे, आंतरिक फेरफार हो जाएगा. जैसे मैं आपको बताऊं, देखो, टुडे इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन. हम सभी के पास ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है. सभी के पास इंफॉर्मेशन हाईवे एक्सेसिबल है. दैट इज द इंटरनेट. सभी कोई टैलेंट हायर कर सकता है because people have money. So when it comes to information, when it comes to knowledge, when it comes to talent, when it comes to hiring, हम सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं. हम सबको ये कर सकते हैं. तो जीतेगा कौन? आगे कौन बढ़ेगा? तो ये मुझे विषय दिया गया है, reinvent, evolve and lead. We need to reinvent ourselves. जैसे मैंने कहा, बाह्य व्यवस्था हम सभी के पास एक सी है. आंतरिक फेरफार होगा, वो आगे बढ़ेगा. It counts more. See, your academics, your talents, your experiences, your platforms, your back support systems can open any gate for you. But only your values and character can keep that gate open. तो प्रथम बात ये बैकग्राउंड के साथ मुझे ये करनी है. We need to reinvent ourselves when it comes to value system. वैल्यू सिस्टम के अलावा सभी के पास सब कुछ है. From information to resources. I'm putting the whole range. From information to resources, हम सभी के पास सभी कुछ है. Value system stands. Value system counts. Value system delivers. Coal, graphite and diamond are real brothers, rather triplets. All three are made up of carbon. अजीब सी बात है. कोयला, ग्रेफाइट और हीरा सगे भाई हैं, ट्रिपलेट्स हैं. They are made up of carbon and nothing except carbon. तीनों की कीमत में कितनी फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है. भाई सगे भाई हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तीनों की कीमत में इतनी बड़ी तफावत. कारण डिजाइन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर. ये शब्द याद रखना. Design of the internal structure. When the carbon atoms, when they come together in a haphazard way, the final product is coal. कोयला बन जाता है. When the same carbon atoms they come together in a hexagonal structure, तो benzene ring हम पढ़े chemistry में, then the final outcome is graphite. थोड़ी कीमत बढ़ती है, उपयोगिता भी बढ़ती है. And when the same carbon atoms they come together in a tetrahedral structure, the final outcome is a diamond. So coal, graphite and diamond are real brothers, triplets made of the same material, but design of the internal structure makes all the difference. फर्क वहां पड़ता है. तो मेरा प्रथम मुद्दा यह है कि बाह्य व्यवस्था हम सभी के पास एक सी है. High enough from information to resources.
लेकिन आंतरिक व्यवस्था में तफावत लाएंगे तभी बाहर बड़ा तफावत आएगा। जैसे डायमंड में आंतरिक व्यवस्था में तफावत आई, डिफरेंस आया, इंप्रूव हुआ, कुछ अलग हुआ, तो बाहर कीमत बढ़ गई। एक भाई की कीमत में दूसरा भाई ट्रक पर लोड आ जाता है। In a small diamond piece of this size, you get truckloads of coal. So design of the internal structure is very important. देखो आप सब युवा बैठे हैं, हम जो पढ़े हैं, the education system that we have passed through, now it is changing and will change. It needs to be changed. जो एजुकेशन में सिस्टम हम सभी पढ़े हैं, 90% of what we have been taught is facts, figures and history. Only 10% that we learned during our schooling days and college days was such that treated to energize us, to inspire us for better feelings, better emotions and better attitudes. 90% तो facts and figures से सीखे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है, for all promotions, growth, progress and success in life, 85% counting depends upon your attitudes. And only 15% of your promotions, of your progress, of your success depends upon the technical expertise that you have. मतलब क्या हुआ? हम जो पढ़े, we spend 90% of our academic time on the 10% part which is responsible for success. And we spend only 10% of the time on 85% part which is responsible for success. तो बोलते हैं कि आपके पास रिसोर्सेस हो न हो, कम हो, what matters most is your attitude. तो सबसे पहली बात हमें रीइन्वेंट अपने आप को करनी है, नया वर्जन बनाना है। जो हमें शुरुआत में हमने बात की कि नया वर्जन जो बना है, रीइन्वेंट करना है, उसमें एटीट्यूड चेंज करना है। And the biggest discovery of the 20th and the 21st century is that a man can change his life by changing the attitude towards life. अभिगम, दृष्टिकोण आप बदलोगे, जीवन बदल सकता है, कार्य बदल सकता है, सफलता का राह भी बदल सकता है। नब्बे की साल तक अब ध्यान से सुनना, until 1990 मान्यता यह थी कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो, मटेरियल रिसोर्सेज हो, मनी रिसोर्सेज हो, वे कुछ करते हैं, कर पाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। आफ्टर द 1990 सिनेरियो बदल गया। देखा गया समाज में, स्पेशली आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द सिलिकॉन वैली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि जिनके पास रिसोर्सेज थोड़े कम थे या नहीं भी थे, वे लोग भी सफल होने लगे। तो मैनेजमेंट गुरुज में बड़ी चर्चा होने लगी, डिबेट चली कि वी थॉट, हम ये मानते थे कि रिसोर्सेज जरूरी है, ये तो रिसोर्सेज कम है या नहीं है, वे लोग भी बहुत आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं। तो रीइन्वेंट की बात है, जो विषय पर हम बात करते हैं कि यार ये अपना विचार कुछ रीइन्वेंट करना पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है। फिर पता चला, बहुत रिसर्च के बाद, उसमें बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु थे, वैसे साइकोलॉजिस्ट भी थे, जेफ केलर। उन्होंने 14 साल तक ये रिसर्च किया कि why sometimes with people with good resources they fail or they succeed less, and why sometimes people with lesser resources they succeed well. 14 साल की रिसर्च में he must have read more than about like 400 to 500 books on success. He must have attended hundreds of hours of training programs on success. He must have read he must have personally met and interviewed more than 3,300-400 people, both failures and successes in life. इन सभी बातें को मिलाकर he came to a conclusion. He writes a book that became a New York Times bestseller. I would suggest all of you to definitely read that book. उस बुक में पावर है आपका जीवन बदलने का।
टाइटल ऑफ द बुक इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग। लेखक का नाम है जेफ केलर। इतना संशोधन उन्होंने किया है अनबिलीवेबल, और इतने संशोधन के बाद वे कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अभिगम ही है सब कुछ। योर बिलीफ सिस्टम, योर वैल्यू सिस्टम, and the way you express your belief system and value system, that counts. So attitude is everything. 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव जीत के आए थे। वेस्ट इंडीज को लगा कि यार ये तो बुरी तरह हार गए। 75 में 79 में वर्ल्ड कप जीता था, और ये तो फाइनल में इंडिया जैसी टीम हरा गई। उस वक्त तो ये बोल सकते थे वे। इमीडिएटली द वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कॉन्टैक्टेड बीसीसीआई, बोले कि 6 टेस्ट और 6 वनडे इंटरनेशनल के लिए हम भारत आते हैं, और पूरी पावर के साथ वेस्ट इंडीज की टीम आई। कभी उनकी ए टीम भारत नहीं आती थी, बी टीम आती थी भारत खेलने के लिए। ये पूरी ए टीम आ गई। गार्डन ग्रीनिच, डेजमन हेइंस, रिची रिचर्डसन, विव रिचर्ड्स, गस लॉगी, माइकल होल्डिंग, जॉर्ज गार्नर, कॉलिन क्रॉफ्ट, सभी को आ गए। 6 वनडे डिफीटेड इंडिया बाय 6-0। उनको दुनिया को बताना था कि वैसे चैंपियंस तो हम ही हैं, ये कुछ फ्लूक से ये देश जीत गया। 6-0 से वनडे इंटरनेशनल जीते। फिर टेस्ट सीरीज शुरू हुई। फर्स्ट टेस्ट कानपुर में इनिंग्स डिफिट से भारत को हराया। बढ़िया टीम थी उनकी। भारत के सभी खिलाड़ी डिप्रेशन में चले गए। सभी को लगा कि यार डिफिकल्ट टू फेस दी वेस्ट इंडीज पेस बैटल, और उनके जो कैप्टन थे क्लाइवर, उनका ये एटीट्यूड था। 6 बैट्समैन स्पेशलाइज्ड, 4 बॉलर स्पेशलाइज्ड, 1 विकेट कीपर स्पेशलाइज्ड, नो ऑलराउंडर, नो स्पिन बॉलिंग। ये एटीट्यूड से चले, और 70s और 80s में क्रिकेट जगत पर राज किया, क्योंकि वे मानते थे कि सुबह से शाम तक गेंद 90 माइल्स पर ही गिरनी चाहिए, नो रिलैक्सेशन टू द बैट्समैन। और उनके बॉलर्स डिलीवर करते थे, तो लगा कि यार ये बुरी तरह से हार जाएंगे, मर जाएंगे। इंडियन क्रिकेट टीम की काउंसलिंग चालू हुई, और सबसे पहले कभी कानपुर की टेस्ट में किसी ने मैल्कम मार्शल को एक भी चौका नहीं मारा था। भूल से भी कट लेके स्लिप के ऊपर से गेंद कभी नहीं गई। तो सुनील गावस्कर को प्रथम हिम्मत बढ़ाने के लिए, एटीट्यूड बदलने के लिए काउंसलिंग किया गया। सुनील गावस्कर को कहा गया कि मैल्कम मार्शल इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, यू आर अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, लेकिन आपका एटीट्यूड बदलना है। चेंज योर वर्जन, रीइन्वेंट योरसेल्फ। यू हैव द टैलेंट, यू हैव द एक्सपीरियंस। एटीट्यूड ये बदलना है। स्टार्ट अटैकिंग मार्शल फ्रॉम बॉल 1, डोंट गो ऑन द डिफेंसिव मोड। वो आपके सर पे चढ़ जाए, इतना मौका उनको मत देना। आप अटैक करेंगे तो बाकी की टीम भी, उन सभी का हौसला बढ़ जाएगा। दूसरी मैच यहां दिल्ली में फिरोज शाह कोटला पे हुई, अभी तो वरुण जेटली स्टेडियम है, यहां पे हुई। इंडिया बैटिंग में आई टेस्ट, सेकंड टेस्ट में फर्स्ट इनिंग्स है, पहले ही दिन हम देख रहे थे, तब हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में थे। सोचा कि लंच के पहले इंडिया 105 for 7 हो जाएगी, लेकिन इनका एटीट्यूड बदल दिया। एक वाक्य मैंने बीच में कहा था, द बिगेस्ट discovery of this century is that you can change your life by changing the attitude towards life. Resources की चिंता मत करना। Resources आपके पास है नहीं है उसकी चिंता मत। मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास पढ़ाई कम है, ये चिंता मत करना। अभी पढ़ रहे हो तो अच्छी पढ़ाई करना, ये सुन के छोड़ मत देना, लेकिन कभी ये चिंता मत करना। रिसोर्सेज लेस और मोर, एटीट्यूड काउंट्स। कर सकता हूं, करेंगे। तो गावस्कर का एटीट्यूड बदल दिया। गो ऑन द अटैकिंग मोड। गेंद चालू हुई, फर्स्ट ओवर में मैल्कम मार्शल को पहले 6 गेंदों में 4 मारी सुनील गावस्कर, विच वॉज वेरी अनलाइक ऑफ हिम, वेरी अनलाइक ऑफ हिम, क्योंकि 1975 के वर्ल्ड कप में सुनील गावस्कर, उसको 60 ओवर्स की वनडे इंटरनेशनल हुआ करती थी। तो वहां गावस्कर ने कोई एक मैच में वर्ल्ड कप में प्रथम ओवर की प्रथम गेंद फेस की थी, और 60वीं ओवर की लास्ट गेंद भी फेस करी थी, और 36 नॉट आउट रहे थे।
वर्जन बदल गया, ये शब्द लेके घर जाना, रीइन्वेंट हो गए। मेलकम मार्शल और सुनील गावस्कर दोनों वैसे तो मित्र थे, इंग्लिश काउंटी में समरसेट में साथ में खेलते थे। Putting his, I still remember that scene, putting his hands on his waist, मेलकम मार्शल ने सुनील गावस्कर को पिच के मध्य में आते हुए बोला, बड़ी टुडे इज योर डे, प्लीज आज आपका दिन है। एंड गावस्कर स्कोर्ड अ सेंचुरी बिफोर लंच। टेस्ट मैच में वो कभी संभव हम मान नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली वो वाज अ टेस्ट प्लेयर, नॉट वनडे इंटरनेशनल प्लेयर। टेक्निक एक्सीलेंट सुनील गावस्कर जी की, एक्सपीरियंस अद्भुत, लेकिन वो जो डिफेंडिंग मोड में थे उसमें से उनको अटैकिंग मोड में ला दिया। 6 टेस्ट भारत खेली, 3 हार गई, लेकिन 3 जो बचा पाई वो सुनील गावस्कर की वजह से। और 6th टेस्ट में चिदम्बरम चेपॉक स्टेडियम पे चेन्नई में 5वें दिन गावस्कर ने डबल सेंचुरी की, 236 नॉट आउट और टेस्ट बचाई। When you change your attitude, it has the power to bring all the latent energies out. As स्वामी विवेकानंद कहते थे, each soul is potentially divine. हमारे अंतर में अनंत शक्ति पड़ी है, अगर हम चाहे अभिगम बदल दे तो वो शक्ति बाहर आ सकती है। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना एटीट्यूड रखा बचपन से, और वे कहा करते थे, इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज अवर ओन। ये उनका जीवन मंत्र था। दूसरों के आनंद में हमारा आनंद, दूसरों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष, अन्य के सुख में हमारा सुख, ये उनका जीवन मंत्र था। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये जीवन मंत्र बनाया, एक एटीट्यूड उनका बदल गया। सिर्फ 5 कक्षा पढ़े हुए थे, अंग्रेजी का एक वाक्य ठीक ढंग से नहीं बोल पाते थे, अंग्रेजी छोड़ो हिंदी का भी नहीं, लेकिन उन्होंने जो पृथ्वी पे किया। आप में से कितने लोग यहां अक्षरधाम में गए हो, नोएडा में? जस्ट रेज योर हैंड्स, आई कम फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। सभी आप गए? ऐसे, अब ध्यान से सुनना, ऐसे, आप तो बिल्डिंग लाइन में हो तो आपको ज्यादा पता चलेगा, अनुभूति होगी जो मैं बोल रहा हूं। ऐसे अक्षरधाम जैसे छोटे मोटे 1300 कैंपस विश्व में उन्होंने बनाया, 1300। That includes hospitals, hostels, schools, colleges, community centers, संस्कार केंद्र, मंदिर और अक्षरधाम। और अभी 1 महीने पहले प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प था, और हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज ने पूर्ण किया। अमेरिका में रॉबिन्सविल में the second largest हिंदू मंदिर ऑफ द वर्ल्ड। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी। देखो, एक एटीट्यूड बदल जाता है तो आप क्या कर सकते हो। He initiated 1100 saints like us. उनमें से हम में से 800 से भी ज्यादा ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स और इंजीनियर हैं। इनमें से 150 से भी ज्यादा संत हमारे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन और येल जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, और 200 से भी ज्यादा संत दे आर बोर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन। ये तो मैंने आपको इसलिए कहा कि आपको ये ना लगे कि कुछ चला नहीं होगा, जमा नहीं होगा, ठीक नहीं रहा होगा, इसलिए आके बैठ गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, जमा हुआ था, कुछ मकसद लेके यहाँ है, निस्वार्थ भाव सेवा के लिए आए। I have been talking since 25 years on national international platforms. I don't charge a single penny for my talks. यहाँ भी आया हूं, मैंने एक पेनी चार्ज नहीं की है। सेवा है, गुरु की आज्ञा है, सेवा करते, लोगों को अच्छे विचार देना, वर्तन सिखाना, अभिगम सुदृढ़ करवाना, वो गुरु की आज्ञा है तो सेवा करना। हमारे किरण भाई वडवाना जी हैं, जो हमारे हरिभक्त हैं, वो हमारे कनेक्टिंग लिंक बने आज के कार्यक्रम के लिए। तो 1100 संत बनाए, 80,000 से ज्यादा वॉलंटियर फोर्स खड़ा किया, पुरुषार्थ भी इतना किया, क्योंकि एक एटीट्यूड बदल गया तो शक्ति जनरेट हो जाती है। प्रमुख स्वामी महाराज assumed the guruship of this organization after the age of 51. After the age of 51, he traveled to 18,000 villages, towns and cities in 60 countries. After the age of 51, he read and answered 750,000 letters at an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. क्या पुरुषार्थ!
He personally visited more than 3.5 lakh homes, offices and factories to sacrifice. 45 साल तक रोज सुबह शाम इस प्रकार के सत्संग में उन्होंने लाभ दिया. इतनी एनर्जी आफ्टर द एज ऑफ 51. जब हम थोड़ा थोड़ा रिटायरमेंट प्लान चालू कर देते हैं, विचार में शुरू हो जाते हैं. He started his career at 51. And today our Guru Mahant Swami Maharaj, उनका एटीट्यूड यह है कि पृथ्वी पे सभी में यूनिटी का भाव है, सूरज भाव का भाव है, मित्रता का भाव है. Today at the age of 81, he is the administrative head and the spiritual guru of BAPS. 91, he is the spiritual head and the administrative head of the organization. और जैसा अक्षरधाम या दिल्ली में आपने देखा, उससे बहुत बड़ा अमेरिका में बना 1.9 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ स्टोन. इतना ही बड़ा मेलबर्न में बनेगा, इतना ही बड़ा अभी जोहान्सबर्ग में बन रहा है, इतना ही बड़ा अभी सिडनी में बन रहा है, इतना ही बड़ा अभी सूरत में गुजरात में बन रहा है. आपकी एक स्कीम दो स्कीम चालू होती है ना, तो भी सुबह से टेंशन में रहते हो. लेकिन ये एटीट्यूड है कि देना है, कोई थकावट नहीं, कोई चिंता नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे ही रहती है. तो माय फर्स्ट थिंग इन रीइन्वेंटिंग, मेकिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, change your attitudes towards positivity, towards the higher hand, and tell yourself, repeat with me, if I decide, I can. ये अपने आप को रोज सुबह बोलना. क्या बोलेंगे? If I decide, I can. कर सकते हैं. 5वीं कक्षा पढ़े हुए प्रमुख साईं महाराज ने करके दिखाया. कर सकते हैं. So first is your change in your attitudes. Now, when you change your attitude, you change. And when you change, the world around you changes. अपने आप में सुधार. हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर जुन्नार. बेसिक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेते थे. एक पेपर इंटरनल एग्जाम में ऐसा उन्होंने निकाला, वैसे तो कोई ऐसा टफ नहीं था, लेकिन क्लास में ऑल 40 स्टूडेंट्स फेल. ऑल 40. सभी की आंसर शीट्स लेकर गए क्लास में, सभी को आंसर शीट्स अपनी अपनी बात दी और बोला कि आप लिख लो आपने कहां गलती की है. देख रहे थे. पूरा हुआ, आधे घंटे के बाद सभी की आंसर शीट्स करेक्ट की. बाकी का 20 मिनट का पीरियड बाकी था. कुछ बोलने वाले थे, कहने वाले थे, पढ़ाने थे. कुछ नहीं बोल रहे, आंख में आंसू आए और रोते रोते क्लास के बाहर चले गए और बोले क्या अपने आप को, आई डोंट नो बट समथिंग इज रॉन्ग विथ मी. ये बहुत समझने लायक प्रसंग और भावना है. प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं? आई डोंट नो बट समथिंग is wrong with me. I don't know what is wrong with me. हमारा एटीट्यूड क्या है? Anything that goes wrong, आपने ये गलती की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने अपना रोल ठीक नहीं कर रखा. अगर आपको ग्रो होना है, आपकी कंपनी को ग्रो होना है, देखो प्रोफेशनल एडवाइसेस तो हमें बहुत सारी मिलेगी. I am not talking of teamwork and hard work and management and setting goals, वो सब कॉमन बात है. I am talking of design of the internal structure. कुछ भी गलत हुआ फैमिली में या बिजनेस में, पहली बात ये बोलना, something is wrong with me. आप यहां बैठे हो, आपका प्लांट इलाहाबाद में है या ओडिशा में, वहां भी किसी ने गलती की तो हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिवली तो जो स्टेप्स लेना है वो लेने पड़ेंगे और लेना. लेकिन अपने आप को बोलना कि something is wrong with me. There the version of yourself, the new version of yourself starts. Something is wrong with me. मेरे कार्य क्षेत्र में कोई भी बात बनी जो बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो बनी, something is wrong with me. ये एटीट्यूड इंप्रूवमेंट देगा. As a human being, as a professional, it will be advantageous for your organization. दूसरी बात है अपने कार्य क्षेत्र में अपने इंप्रूवमेंट, can never ever play with ethics, norms and disciplines. ये एटीट्यूड बनाए रखना.
This is the most important sector that we all need to improve upon, reinvent and get a better version of ourselves. देखो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, वरना बहुत सारे अंबानी और अदानीस पैदा हो जाते भारत में. There is no shortcut to success. It is always one step at a time. They say there is no elevator to success. आप जब काम करते होंगे आपके कार्य क्षेत्र में, आपको इजी रास्ते दिखेंगे, आप लालायत हो जाएंगे, इस प्रकार की बातें आपके पास आएगी, लेकिन कभी भी वहां फंस मत जाना. I always walk on the path of ethics, disciplines. ये अपने आप को कहते रहना. Because अब जो मैं 2-5 मिनट बात करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना. वो आपके लिए जीवन दोरी है. It is lifeline for you. क्या आप कितने भी टैलेंटेड होंगे, एकेडमिकली क्वालिफाइड होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन एथिक्स, नॉर्म्स और डिसिप्लिन में गलती की, यू कैन बिकम जीरो फ्रॉम हीरो विद इन सेकेंड्स. डू यू बिलीव? यस और नो? रेज योर हैंड्स इफ यू से यस. 2018 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रही थी. साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज. तो उस वक्त उनके कैप्टन हुआ करते थे स्टीव स्मिथ, जो अभी भी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन थे. तो सोचा कि साउथ अफ्रीका के सामने ये टेस्ट जीतेंगे. देखा कि पुरुषार्थ तो करते हैं, टैलेंट है, लेकिन सामने भी इतना पुरुषार्थ और टैलेंट है. ही टुक द अनएथिकल पार्ट. स्टीव स्मिथ उनके ओपनिंग बैट्समैन थे, डेविड वार्नर जो अभी भी ओपनिंग बैट्समैन, और तीसरे हैं कैमेरून बैनक्रॉफ्ट, वो अभी नहीं है. ये दोनों ने मिलकर एक साजिश की कि आज टी ब्रेक के बाद जब अंपायर नया बॉल दे, तब कैमेरून बैनक्रॉफ्ट अपनी जेब में सैंड पेपर लेके जाएगा पैवेलियन में से आफ्टर द टी ब्रेक, और नई गेंद को एक सीम की एक बाजू वो घिसेगा ताकि वो रफ हो जाएगी. न्यू बॉल जब होता है, सीम की एक बाजू शाइनिंग और सीम की दूसरी बाजू डल होता है, तब फास्ट बॉलर्स को रिवर्स स्विंग मिलता है. और कोई भी फास्ट बॉलर व्हेन इज बॉलिंग इज 90, 92 एंड 95 माइल्स पर आवर डिलीवरीज गिरती है, और उसमें रिवर्स स्विंग होता है. वेरी डिफिकल्ट फॉर बैट्समैन टू जज. कैमेरून बैनक्रॉफ्ट ने जेब में से ये निकाल के घिसना चालू किया. ऐसे ही देखते देखते ऐसे ही सीसीटीवी कैमरे में पकड़े गए, बाहर बुलाया. भाई साहब आप क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, जेब में टेप थी, उंगली पे कुछ लगा था, मैं ठीक कर रहा था. शो योर पॉकेट, गेट द सेम थिंग आउट ऑफ योर पॉकेट. निकाल तो सैंड पेपर था, इमीडिएटली बाहर ले लिया. इंक्वायरी चालू की, तो उन्होंने तो नाम बता दिया, मेरे कैप्टन स्टीव स्मिथ ने और ओपनिंग बैट्समैन डेविड वार्नर ने मुझे कहा था, इसलिए मैंने ये किया. दोनों को बाहर बुला लो. इंक्वायरी स्टार्ट हुई. एसीबी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बताया कि समथिंग वेरी फिशी हैज हैपेंड, और ये हुआ. वहां से फ्लाइट लेकर तुरंत एसीबी के ऑफिशियल साउथ अफ्रीका आए. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को पता चला, ही वाज अ क्रिकेट फैन. उन्होंने बोला कि जांच में, मतलब इन्वेस्टिगेशंस में कोई भी कमी मत रखना. तीनों ने एक्सेप्ट किया ऑफ द रॉन्ग डूइंग. स्टीव स्मिथ बैंड फॉर 1 ईयर फ्रॉम क्रिकेट. डेविड वार्नर बैंड फॉर 1 ईयर फ्रॉम क्रिकेट. कैमेरून बैनक्रॉफ्ट तो बेचारा अपने कैप्टन की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसलिए वाज लाइक 9 months बैन. स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को बताया कि 1 ईयर का बैन तो है, 1 ईयर के बाद आप खेल पाओगे, लेकिन यू विल नेवर बी कंसिडर्ड फॉर एनी लीडरशिप रोल. क्या गवाया? पता चला क्या गवाया उन्होंने? You will never be considered for any leadership role. स्टीव स्मिथ आए थे एक ऑर्डिनरी बैट्समैन की तरह खेल रहे थे वर्ल्ड कप में, और उसके बाद अभी T20 की सीरीज चालू हुई है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें भी वो कैप्टन नहीं है. और कैमेरून बैनक्रॉफ्ट का तो ये वे नहीं खेल पाए. अभी तो वो योगा टीचर बन गए, क्रिकेटर में से योगा इंस्ट्रक्टर बन गए. नहीं झेल पाए ये प्रेशर. कहां थे, कहां पहुंच गए? इतने टैलेंटेड प्लेयर्स थे. तो आपसे
ये अनुरोध है आप सभी को कि आप यंग एंटरप्रेन्योर्स हो, बिजनेसमैन हो, फैमिली बिजनेस आपके पास है या कुछ नई बात आपने शुरू की है, आपके पास आप लालच हो जाए, इस प्रकार की बातें आएगी, आपको भी ये लगेगा कि अगर ये पथ छोड़ के अगर मैं ये पथ पे चलूं तो देयर इज इजी मनी, देयर इज इजी रिचनेस, लेकिन वो पथ कभी मत लेना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तकलीफ आएगी, आएगी और आएगी। Whoever you are, whatever you are, आया ना? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एथिक्स, नॉर्म्स और डिसिप्लिन को साथ लेके चलें। इट इज योर सोल आउटसाइड योर बॉडी। ये दर्जा मैं एथिक्स को देता हूं। एथिक्स को क्या दर्जा देता हूं? देयर इज अ सोल इनसाइड योर बॉडी बाय विच यू ब्रीथ एंड लिव। देयर इज अ सोल आउटसाइड योर बॉडी एंड दैट इज एथिक्स। उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। कैन यू प्ले विथ फायर? आप में से कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो? हाथ ऊंचा करें। हाँ, कोई है? 3 4 5। तो ऐसे ही बार सुबह जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो और शायद कोई दिल्ली में बड़ी कंपनी में आप सीईओ हो, तो कप ऑफ कॉफी आपके बाजू में पड़ा है, इंटरेस्टिंग संडे आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, एंड लुकिंग एट द प्लग, कैन यू पुट योर कॉलर्स अप एंड से, हे, your distribution in that part of the city lies in my hands, so this is the CEO's finger I'm putting inside the plug, take care of it. कह सकते हो क्या? हाँ या ना? Electricity doesn't know your post, position and power, isn't it? In the same way, ethics doesn't know your post, position and power. Electricity की तरह चिपका देगी, मर जाओगे. Even if you are the Sahara of thousands of families, you can still lie Besahara in Tihar for 4 years. Even if you are the king of the skies, you have to leave India without Indian passport. Isn't it? कोई 2-4 लंदन भाग गए हैं, 1-2 कैरेबियन आइलैंड भाग गए हैं. Tihar is waiting with broad arms to hug them. आएंगे, वापस लाना है. Ethics कभी किसी को नहीं छोड़ता. Reinvent yourself, make a better version of yourself. ये हम बात कर रहे हैं. ये एटीट्यूड डेवलप करना कि whoever I am or whatever I become in future, I am better. कभी मैं प्रोफेशनल्स को बात करता हूं, कभी हंसते हंसते एक बात करता हूं, you must marry twice in your life. देखो सब शॉक हो गए. One of course with your spouse and second with ethics. Marry with ethics. It's your lifeline. सिद्धांत और नीति नियम से कोई आगे आए, उसकी खुशबू अलग होती है. और सिद्धांत और नीति नियम को छोड़ के कोई आगे आए, समाज ने आज तक कभी उसकी कीमत नहीं की है और नहीं करेगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ reinventing is yourself is your how to evolve and how to lead thereafter is how you deal and connect with people. सबसे बोगस, सबसे खतरनाक और सबसे बदबू भरा हुआ शब्द जो प्रोफेशनल्स में और मैनेजमेंट सिस्टम में यूज किया जाता है वो नेटवर्किंग है. क्योंकि नेटवर्किंग शब्द में स्वार्थ समा हुआ है. नेटवर्किंग शब्द में मेरे लिए मैं कुछ पालू, इतने लोगों के बीच जाके 2-5 को मिलके संबंध बना के मैं कुछ पालू, ये भावना छिपी हुई है नेटवर्क में. इसलिए मैं जब प्रोफेशनल्स को बात करता हूं तो बोलता हूं कि नेटवर्क शब्द छोड़ो, उसकी जगह शब्द है डिग्निफाइड कनेक्टिविटी. दोनों के लिए तो डिग्निफाइड कनेक्टिविटी रखना. रीइन्वेंट योरसेल्फ फॉर डिग्निफाइड कनेक्टिविटी. Because a Harvard University study says that 90% of your success in your business depends upon your relationships with people. ऐसे बिजनेसेस आप में से कोई करते होंगे या देखा सुना होगा, हमने भी देखा सुना है कि कई बार 2 पार्टी एक दूसरे के साथ 10, 12, 15, 20 साल से बिजनेस करें, एक दूसरे को मिले ही नहीं है. एक दूसरे को मिले भी नहीं है कभी. विश्वास से काम चलता है, संबंध से काम चलता है. तो जो भी व्यक्ति को आप मिले उन सभी को प्रेम और आदर देना. यह सिर्फ ह्यूमन ड्यूटी नहीं है,
ये सब ह्यूमन इंडेवर नहीं है, इट्स अ ह्यूमन डिग्निटी। आप सभी मानते हो कि सभी व्यक्ति इस पृथ्वी पे प्रेम और आदर के लायक हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू से यस। सभी व्यक्ति प्रेम और आदर के लायक हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति आपके कंपनी में काम करता हो, आपके आसपास में हो, आपके कोई संबंध में हो, उसको प्रेम और आदर देना। स्माइल मुफ्त में मिलती है, गुड मॉर्निंग या नमस्ते कहना मुफ्त में मिलता है, आया ना, तो करो ना। Why? Because it is not always necessary that only an MBA from Harvard can get the best of ideas. Of the 100 ideas that have changed the course of history, more than 70 have come from class 3 and class 4 officers. So, बुद्धि वाले पढ़े लिखे लोगों को ये मानने की जरूरत नहीं है, मतलब हम सभी को, मैं और आप सब आकर, कि अच्छे विचार हमें ही आते हैं। कभी आईसीसी में चर्चा शुरू हुई, 300 एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे थे पूरे विश्व के क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के, और चर्चा ये कर रहे थे कि फुटबॉल में जितने पैसे उतने क्रिकेट में क्यों नहीं आते, स्टेडियम भरे हुए क्यों नहीं होते। पूरे दिन की ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद पता चला कि यार कुछ नतीजे पे नहीं आ रहे। जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख रहा था क्लर्क, आईसीसी का क्लर्क कोने में बैठ के, उन्होंने चेयरमैन को कहा, वो तो एक्सेसिबल था क्योंकि रोज उनको मिलता था, इसलिए सर आई हैव एन आइडिया। क्या है वो? एटीट्यूड तो रहता है ना बॉस का, क्या है वो? उन्होंने कहा सर कैन वी रिड्यूस द प्लेइंग टाइम एंड कैन वी रिड्यूस द नंबर ऑफ ओवर्स, वी हैव अ 50 ओवर इंटरनेशनल, कैन वी गो इट फॉर 2020? उठ गया क्या? बुद्धि बुद्धि है कि नहीं? कभी 2020 मैच को देखने आएगा कि नहीं? Every great idea has been ridiculed at the first point. The history says this. दूसरे ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन के बाद भी कुछ नहीं मिला। फिर से उन्होंने आगे बताया, आइडिया एक्सप्रेस किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और आज हम नतीजा देखते हैं। IPL is the second richest league, sports league of the world. कोई भी स्पोर्ट आप ले लो। तो ये हम जो यहाँ बैठे हैं, कोई MBA हुआ होगा, कोई CA हुआ होगा, कोई पढ़ते होंगे, कोई बिजनेस चलाते होंगे, पहले ये हवा मन में से निकाल दो कि मुझे ही अच्छा आइडिया आता है, मेरे ये कर्मचारी है, ये मेरा छोटा कर्मचारी है, ये मेरा प्यून है, उनको कभी आइडिया नहीं आएगा। गॉड इज वेरी ग्रेशियस ऑन एवरीबॉडी, ही कैन इंस्पायर एनी माइंड एनी टाइम। एक्सेप्ट करना, और ये एक्सेप्टेंस के लिए आपको क्या इन्वेंट करना पड़ेगा? ईगो डिफ्लेट कर देना। हम ये मानते हैं कि मेरे जैसे इस पृथ्वी पे आज तक लाखों आ गए और लाखों आएंगे, ये बात कितने लोग मानते हैं? अब जिन्होंने आंख ऊंचा किया वो आज से आई डिफ्लेट कर देना। तेरे जैसे पृथ्वी पे लाखों आ गए और लाखों आने वाले हैं। Yesterday you were a clot of blood in your mother's womb, tomorrow you will be a dust of particle. पृथ्वी पे से रोज 1.5 लाख आदमी चले जाते हैं, 1.5 लाख। Every 2 seconds 3 people leave this earth. तो तेरे जैसे कितने आए और तेरे जाएंगे? डिफ्लेक्ट करना ईगो, इसका एडवांटेज क्या है पता है? More people would like to come to you, more people would like to join you, and more people would like to work with you. जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे भारत के, हमारे गुरुवारी प्रमुख स्वामी महाराज को यही अक्षरधाम में मिले थे 2001 में। प्रथम मुलाकात थी, प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में उन्होंने कुछ सुना था, कुछ पढ़ा था, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज की ह्यूमिलिटी देख के इतने वे प्रभावित हो गए। अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि स्वामी जी, आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू, आई वुड लाइक टू वर्क अंडर यू। और उन्होंने उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टीम थी, थिंक टैंक थी, साथ में मिलके महीनों तक चर्चा करने के बाद उन्होंने 5 मुद्दे नक्की किए थे कि इस 5 क्षेत्र में अगर हम काम करें तो भारत एक विकसित देश बन सकता है। वो 5 क्षेत्र उन्होंने नक्की किए थे। प्रथम था एजुकेशन एंड हेल्थ, सेकंड था एग्रीकल्चर, third was infrastructure, fourth was communications, and fifth was critical technology. फिर प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा कि स्वामी, इसमें आप भी बहुत पूरे विश्व में घूमे हो, बहुत लोगों को मिले हो, आप भी इतना बड़ा संप्रदाय चलाते हो, तो आपके पास इस कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन हो तो आप बोलना। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, एट द 6th एलिमेंट, द 6th फील्ड, एंड दैट इज फेथ इन गॉड। भगवान में श्रद्धा रखना तो वैल्यू सिस्टम आप में आएगी।
भगवान में श्रद्धा की बात हम कर रहे हैं तो ये मत समझना कि हम स्वर्ग की और मोक्ष की बात करेंगे, वो सही है, लेकिन कभी और कोई दिन करेंगे। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि faith in God strengthens the value system in your life. That is a clear advantage to you, isn't it? क्योंकि अगर दिल्ली में यहाँ स्टोर्स और मॉल्स 24/7 है और कैश एंड कैरी है, तो मंदिर, अक्षरधाम और श्रद्धा भी कैश एंड कैरी होनी चाहिए। श्रद्धा भगवान के प्रति कैसे कैश एंड कैरी है? इट स्ट्रेंथन्स योर वैल्यू सिस्टम। तो वैल्यू सिस्टम ये स्ट्रेंथ में आती है कि भगवान, मुझे श्रद्धा है तो सभी में भगवान का वास है। एडमिनिस्ट्रेटिवली जिसको जिस तरह से ट्रीट करना है वैसे ट्रीट करना है, कि ये क्लर्क के लायक है, उनको जनरल मैनेजर नहीं बनाना है। एडमिनिस्ट्रेटिवली तो वही चलता है, लेकिन भावना से उनके प्रति उतना ही प्रेम और आदर रखना जितना आप अपने सीईओ और जनरल मैनेजर के प्रति रखते हो। दिस इज रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। और ये जादू देखना, मोर एंड मोर पीपल वुड लाइक टू हैव योर कंपनी, कम टू यू, वर्क विथ यू, वर्क अंडर यू। यही एडवांटेज मिलता है। तो योर एसोसिएशन विथ पीपल इज इंपॉर्टेंट। जॉन डी रॉकफेलर स्टैंडर्ड ऑयल के मालिक हुआ करते थे। आई एम टॉकिंग ऑफ द 70s, द फर्स्ट ऑफिशियल डॉलर बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड। कभी उसको पता चला, उनके सीनियर मैनेजमेंट ने कहा कि एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से कोई गलत डिसीजन उन्होंने लिया, सो द कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ $2 million। आई एम टॉकिंग ऑफ 70s and 80s। व्हाट इज $2 million at that time? Today it is a very huge money, at that time it was। 2-3 दिन के बाद जेडी रॉकफेलर ने उनको बुलाया चेंबर में। प्रथम बार वे सुपर बॉस की चेंबर में जा रहे थे, क्योंकि तो जेडी रॉकफेलर हिमसेल्फ और ये कंपनी के कर्मचारी थे। He offered him a chair, surprise. Offered him a glass of water, surprise. एक एम्प्लॉय को लगा कि यार बिठाया, पानी पिलाया, अब तो बुलेट छाती पे आएगी, यू आर फायर, मार देगा वो। जेडी रॉकफेलर ने टेबल के ड्रॉर में से एक चिट्ठी निकाली, कुछ लिखा हुआ था, पढ़ने लगे। You have been working in this company since last 25-28 years. आपने ये पोजीशन पे काम किया, ये पोजीशन पे काम किया, ये पोजीशन पे काम किया। आपने ये निर्णय लिए, ये निर्णय लिए, ये निर्णय लिए। आपकी वजह से कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला था, ये एक्सपांशन मिला था। ये सभी बात करने के बाद जेडी रॉकफेलर ने उस एम्प्लॉय को कहा कि योर इंटीग्रिटी टुवर्ड्स द कंपनी, योर फेथफुलनेस टू योर वर्क, your zeal to give something to the company and the organization stands so much huge and loud in front of me कि आपकी ये छोटी सी गलती मेरे नजर में नहीं आ रही है। He tore that piece of paper और कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मुझे आपको प्रमोशन देना है, और सिर्फ एक प्रमोशन नहीं, आई एम सुपर एन्यूएटिंग यू, 2 प्रमोशन दे रहा हूं ताकि आप ज्यादा एम्पावर हो जाओगे डिसीजन लेने के लिए। यू विल बी मोर ऑथराइज्ड टू टेक बिगर डिसीजंस, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर में दुख है कि आपकी कोई गलती की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को $2 million का घाटा आया है, और आप जल्दी से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप रीपे करने के लिए अंतर से आप मानते हो और अंतर से आपको ये है कि मुझे ये करना ही है। आई एम गिविंग यू बेटर अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। And the employee left the boss's chamber with a double promotion. ये कभी मन में बैठता है कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा या हो सकता है? See, the way you understand your people is very important, because you take care of your people and your people will take care of your work. You don't need to work. ये मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है। यू डोंट नीड टू वर्क, यू टेक केयर ऑफ योर पीपल वेल, योर पीपल विल टेक केयर ऑफ योर वर्क। व्यक्ति को समझना, अपना मानना, उसको एक अपॉर्चुनिटी देना, कि इट स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। वरना इस पृथ्वी पे रोज के 9,800 डिवोर्सेस हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इट विल टच द मैजिकल फिगर ऑफ 10,000 in a couple of months from now, according to world statistics and data.
10,000 डिवोर्सेस पर डे। क्यों? एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। मैं कभी हंसते हंसते बात करता हूं कि एनी कपल विच इज मेड फॉर ईच अदर कपल ऑफ द 60-40 60% they are made for each other, 40% is tolerance, acceptance, apologies and compromise. Yes or no? हाँ या ना? 40% तो tolerance, acceptance, apologies and compromise पे ही चलता है। 60% सिर्फ made for each other होते हैं। तो वही बात आपको बिजनेस में अप्लाई करनी है। Reinvent yourself, change your attitudes, tolerance, acceptance, apologies और कॉम्प्रोमाइजेस। आप किसी को गलती की वजह से आप उनको डांटते हो, गाली देते हो या अपने कंपनी में से निकाल देते हो, आपको वो अधिकार तभी है जब भी आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जीवन में कभी गलती नहीं करोगे। Yes or no? So tolerance, acceptance, apologies and compromise. Marriages are made in heaven बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी कहावत है ना, marriages are made in heaven। उसके पीछे मैंने एक दूसरी कहावत जोड़ दी है, मैरिज आर मेड इन हेवन बट लिव्ड ऑन अर्थ। दे आर नॉट लिव्ड इन हेवन, दे लिव्ड ऑन अर्थ। तो कहने की बात ये, ह्यूमन रिलेशंस में ध्यान रखना, किसी को भी डांटने से पहले 100 दफा विचार करना। दिस इज रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ, चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। और डांटने में भी प्रमुख स्वामी महाराज को 1991 में न्यूयॉर्क वहां मुंबई में हरकिशन भाई मेहता बड़े जर्नलिस्ट थे, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि इतने लोगों के साथ आप काम करते हो, इतनी बड़ी संस्था चलाते हो, कभी किसी को डांटना हुआ है, गुस्से हुए कभी? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हाँ, कोई किसी को कभी कहना पड़े तो कहते हैं, लेकिन उनके बाद वे जो बोले, दैट इज मास्टर क्लास ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। क्या बोले? कि अगर किसी को कहना है तो हम 5 दफा विचार करते हैं, कहूं ना कहूं। दूसरी बात में बोले कि कहूं तो किस शब्द में कहूं। तीसरी बात बोले कि इस तरह से हम कहते हैं कि वो दुखी ना हो, वो पीछे ना पड़ जाए, वो अपमानित ना हो जाए, उसका मॉरल टूट ना जाए। व्हाट द फाइनिंग्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। वी नीड टू रीइन्वेंट, देन वी इवॉल्व एज अ ह्यूमन बीइंग एंड देन यू विल लीड योर ऑर्गेनाइजेशन। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप फाइनल्स बाकी था, सेमीफाइनल्स तक तो हम सभी गेम जीतते जीतते आए थे। फाइनल्स के बारे में रोहित शर्मा ने क्या कहा था? बहुत सारी बातें की थी, लेकिन एक बात ये कही थी कि वी वांट टू विन दिस कप फॉर आवर कोच राहुल द्रविड़। क्यों? उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ कोच बने तो किसी बैट्समैन या किसी बॉलर पे ये नहीं ठोक दिया कि आप यूं करो यूं करो। उन्होंने ये कहा कि आपकी जो नेचुरल क्रिकेट है वो आप बेस्ट बनाए। So this is human relations. As a boss, as an entrepreneur, as a businessman. राहुल द्रविड़ ने कहा कि आपका जो नेचुरल क्रिकेट है, बॉलिंग या बैटिंग है, वो आप बनाएं, do the best version of it, and you will perform, you will deliver, and bring success to the team. So this depends upon human relations. और ये मत मानना कि अगर मैं इसलिए सभी को बोल रहा हूं, सभी को कुछ कह रहा हूं, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है, ये मास्क है। मेरा एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूं। करो, जरूरी है नेक्स्ट जनरेशन के साथ, लेकिन वो शब्द, वो एटीट्यूड, वो अभिगम बहुत ध्यान रखना है। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि उनको पता चले, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि वे भी कुछ सीखे। वो जरूरी है, लेकिन एटीट्यूड्स का ध्यान रखना, कभी शो ऑफ मत करना। The more humble you are, people will come to you. So this is from the human relations point of view. तो मैंने आपको रीइन्वेंट में 3 बातें बताई। फर्स्ट, check your attitude towards your personal life, check your attitudes towards your work, and check your attitudes towards your relationships with people. Because let me again repeat, according to the Harvard study, 90% of your business depends upon your human relations with people. Only 10% on your technical expertise. Human relations जितने आपके स्ट्रांग हो गए, सैम ऑल्टमैन को ओपन एआई के सीईओ के पद में से निकाल दिया गया, बोर्ड ने निकाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां था, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट का था। जो भी कुछ घटनाएं बनी, स्टिल इट्स अ मिस्ट्री है, वो टर्न ऑफ इवेंट्स। लेकिन
लेकिन 2 दिन में वापस सैम ऑल्टमैन को ओपन एआई का सीईओ बना दिया गया। उसके पीछे का फिनिशिंग इन 2 मिनट्स, उसके पीछे घटना क्यों क्या बनी? 800 employees of OpenAI, they decided to leave the company. That if Sam Altman is not my CEO, I don't want to work in my company. 800 employees they decided, और वो कंपनी सीधी माइक्रोसॉफ्ट की गोद में बैठ जाती। तो ये बोर्ड को तो पसंद नहीं है, इसलिए फिर से भाई साहब सैम ऑल्टमैन वापस सीईओ आए। 800 एम्प्लॉइज, कोई ये ओपन एआई में ये एम्प्लॉइज कोई कम नहीं किया, सभी टेक्निकली जीनियस थे। ऐसे 800 एम्प्लॉइज के साथ एक फैमिली रिलेशन बनाना वो कोई सामान्य बात नहीं है। हम 2 के साथ भी कंपनी में नहीं बना पाते हैं। सीईओ के रूप में हटाया तो 800 कर्मचारी ने कहा कि अब नहीं काम करते हैं। क्या रिलेशंस बनाए होंगे, उनको वापस लाए। योर ह्यूमन रिलेशंस इज योर सक्सेस। और ह्यूमन रिलेशंस बढ़ाने के लिए एक ही चाबी है, आई डिफ्लेक्ट कर देगा। ही इज जूनियर टू मी, ही हैज टू से गुड मॉर्निंग टू मी फर्स्ट। ये एटीट्यूड मत रखना, ये एटीट्यूड मत रखना। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अबू धाबी दुबई गए थे COP28 में, उनकी वीडियो जारी की गई थी कल शाम को। अब देखना उस वीडियो में सभी के साथ हमारे माननीय मोदी जी जो मित्र भाव से हाथ मिला रहे थे, उसमें आधे से भी ज्यादा प्रसंग ऐसे, मैंने तो ये ऑब्जर्व करके देखा कल शाम को, कि अपनी ओर से वो 2-3 स्टेप चल के सामने उनके पास जाके हाथ मिलाते थे। दिस इज द सीक्रेट टू ह्यूमन रिलेशंस। मैं सीईओ हूं और मेरा एम्प्लॉय मेरे पास आके मेरे साथ हैंडशेक करे, मुझे आके गुड मॉर्निंग पर बोले, ये विचार अभी से आज से छोड़ देना। डू यू बिलीव इन दिस? ये मैं आपको बहुत बड़ी सीक्रेट बता रहा हूं। कार्व आउट योर प्लेस इन हार्ट्स ऑफ पीपल, ये रहस्य है। तो ह्यूमन रिलेशंस। और आखिरी बात ये करूंगा, भगवान में श्रद्धा रख के रोज सुबह प्रार्थना या नाम स्मरण करके निकलना। मॉर्निंग प्रेयर्स इज इंस्पिरेशन, इवनिंग प्रेयर्स आर डिस्ट्रेसिंग। 50,000 से ज्यादा रिसर्च पे आप ये बोलेंगे स्वामी जी आप तो संतों भगवान के श्रद्धा के बारे में जरूर बात करेंगे। आई एम अ मैन ऑफ साइंस एंड मैन ऑफ रिलीजन। मैं लॉजिक से भी बात करूंगा, श्रद्धा से भी बात करूंगा। वी नीड बोथ। 50,000 plus research papers have been produced in national and international conferences by men of science on some aspects of spirituality, how it helps you physically, mentally and emotionally. तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूक में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में ऐसी रिसर्चेज हुई है कि जहां भगवान का नाम स्मरण करके अपना काम चालू करते हो, दिन चालू करते हो, आप एक डिफरेंट रिफ्रेशिंग मोड में आ जाते हो, डिफरेंट एनर्जेटिक मोड में आ जाते हो। आपको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती रहती है पूरे दिन तक। बहुत सारी रिसर्चेज हुई है। तो कभी नास्तिकवाद में मत जाना, थोड़ी श्रद्धा रखना, तो आगे ये बहुत काम में आएगी। फिजिकल हेल्थ के लिए भी अध्यात्म की जरूरत है, ऐसे भी थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स हैं। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी अध्यात्म जरूरी है, हजारों रिसर्च पेपर्स हैं। इमोशनल इक्विलिब्रियम के लिए भी स्पिरिचुअलिटी जरूरी है, ऐसे हजारों रिसर्च पेपर्स हैं। तो हम जो 2 साइंस की पुस्तकें पढ़ के ग्रेजुएट हुए हैं, तो ये मत बोलना कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस और मैं सब कुछ जो देखूं वही मानता हूं। जिन साइंटिस्ट को आप पढ़ के बड़े हुए हो, न्यूटन, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, आर्किमिडीज, ये जो प्रथम 10 में ये साइंटिस्ट का समावेश है, इन सभी में भगवान में अटूट श्रद्धा रखी। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, आई एम नॉट टचिंग इट दैट। तो ये नास्तिकवाद कभी मत आने देना। हैव द नेचुरल इंस्पिरेशन कम टू यू and you be a different person. So, ये 4 बातें हैं। Thank you very much for patiently listening to me, and all my prayers for all of you, and may my Guru Maharaj bless you all. Thank you very much. जय स्वामी। आप बैठे प्लीज।